Okay, guys. So, what all things have we covered in previous class? Can I? Anybody else, if they want to? So may I? Yes, Jans. Go ahead. Thank you, sir. Good morning, sir. Last class we covered some of the portions. The first portions is the image. So for making a server, we need an image, whether it can be a Windows, Linux, or anything. Then after that, we need to do some configuration into it, and it will result into a particular system. And in a particular system, we have several internal servers with internal applications, which contain some tools like CRM, Magnos, which are needed to handle some internal things. So to deploy this, we need some of the servers. Then for accessing some of the servers privately, we just need to do some SSL configuration on the server, and SSL can be done on server label or in the load balancer label, but load balancer label will be better for it. And SSL is mainly a secured socket layer, which is a lock is there. The connection is secured via the SSL. When a website uses a HTTPS, the log shows to tell the users that the connection is secured. At times when we see the not secure written in the place of log, which means that the site is not using SSL, thus the connection may or may not be secure. But when it is there a valid SSL installed, we will see the HTTPS in the beginning of the URL and a lock is there. So then we go into the configuration, but during the configuration, sometimes when you fire a comment, then it will sometimes not work. For example, when installing a particular application version and then it upgrade to another label, then we need to delete the first version and install the second version, but there are some of the metadata of the version 1 remains, which create installation problem for the version 2. Then we learn about when we're working for customers and customers are a problem in their service or system, then we need to solve it. But if we do it in the direct label, then if a new problem occurs in its internal configuration, then it will be more problem for us. So we create a similar kind of environment for it and then do the correction or configuration, and if it works, then we do the final configuration in the customer server. So for creating a similar kind of environment, we just need to create a image replica of the virtual machine. Then from the image replica, we create another virtual machine and do the correction into it. And if it works, then we did the final configuration. And this is called a proof of concept. Then practically we did created a resource group. Then we created a virtual machine. Then there comes a option called availability option. There we choose no infrastructure redundancy required, because if we select a particular availability zone or a particular zone type, then we need to also select a particular image or size that is present or available there. So we selected no infrastructure. Then we did the connection through MobaXterm software and learned to promote a particular server as a web server in Linux. We use the command in Apache. Then using some of the commands, we create a folder and did a simple echo command to write a statement in the site and go to the overview and copy the public IP address and add it to the browser, and we are able to see the statement in the website. Then as we need to solve the internal configuration, we need to create a image. So we created a gallery and then define a image definition and the version number, then created a image. But it takes a lot of time, which does a great impact for the system or software, like loss of customer deals and etc. As it is very essential to live the applications such as YouTube, Amazon, WhatsApp, they cannot go down. Then we practically created a virtual machine from the image and then copy its IP address and get the same web page in the browser. Then we learn about virtual network, which is the
which is in AWS VPC. In virtual network, we learn about IP that can be both public and private. So whenever we want to deploy a resource into the cloud, we need a network. So now come the concept that what is a subnet? A small part of a big network is known as a subnet, which we need to create it to isolate each subnetworks. There, to give the network an identity, we need a CIDR. Uh, so CIDR is basically classless inter-domain routing, which is an IP address allocation method that improves the data routing efficiency in the internet. Each VNet we create has its own CIDR block, and CIDR block can be also called a CIDR range. For example, we can take is at 10.0.1.0 by 24 can be example of CIDR range, and can be linked to other VNets and on-premises networks as long as the CIDR block do not overlap. And we can use various CIDR ranges as addresses in the VNet. So then we take some example of the CIDR range, such as the same example. It is a 10.0.0.0 by 16, where 16 stand for 8 plus 8. So two 8s are required. So first two bits are constant, and those can denote into the private IP address. Then we come to create a network containing two logical isolated boundaries. It can be a web subnet and a database subnet. As we know, we have a server and we have its IP address, then we can reach there using internet via its public IP address. But hitting a private IP address will result to nothing. Then we learn that having multiple resources that are internet facing and can contain public IP address, so that we can get to it. Those contents we kept it on web subnet, and for every web server we need a database. So database should be updated time to time from the web server, so we keep the database update, but it should not be accessed by anyone from outside. So they do not use public IPs for accessing anything outside. Other than that, they have a private IP which is known to other subnet inside the particular network. Subnets can be communicate using both public and private IPs. Then sometimes we have to give the access to the developers, keeping the subnet database subnet IP private. There, what we do is use a VPN. Then we create a VPN client. Then we install that VPN client into our system. Then give it to the developer with the ID password, so they can access. Then the developer comes into the Azure network, and now the developer can contact using the private IP. Then we took an example that web subnet or database subnet, the CIDR range for a particular subnet, that we take 10.0.1.0 by 24, and 24 stands for 3 8s, 8 plus 8 plus 8. So the first 3 bits should be considered as constant. So as 2 to the power 8 is 226. So the ranges, those are constant. The bits, those are constant. Apart from that, the other bits, those are remaining, that can vary from 0 to 225. But we see that Azure keep 5 IP address stored in the backend for special purpose. So those can be 0, 1, 2, 3, and 255. And remaining 256 minus 5, the 251 addresses can be created as resources. So why Azure do that? Because Azure resolve the first 4 and the last IP within the subnet, where the first and last IP is for protocol performance. That is, the first can be called as a network address and the last can be called as a broadcast address of the subnet. And the remaining 3 additional addresses are reserved for the by the Azure for service and internal users. Then you did give a task of the address 1.0.0.0 by 8, and how many resources we can create it out of that. So what we did, that it is given 8, right? So the first, there's only one bit is constant, and remaining all the bits can be vary from 0 to 225.
So from that, the first four, that can be 10.0.0.0, and then 1, then 2, then 3. These four, and the 10.225.225.225, these five are resolved by the Azure, and remaining all can be used for creating the resources. Then we learn about how two networks, that is two resources of two different virtual networks, communicate, because they cannot communicate through private IPs. So we did a operation, that is a VNet peering, to make the internal communication through private IP between two different virtual networks. At last, we learn about some of the little concept about Linux, that it is a not operating system, but it is a kernel that is used by various types of Linux. That's it. So very good, Shreyanshi. So this is what we were expecting from the day one. Okay, so it shows like you have understood each and everything very clearly, and you have made a proper notes of that. And whatever the things which I have asked for, you have even tried researching about that as well, and you have said that part as well. Few of the things related to SSL. Okay, so I understand like you guys have got some clarity with respect to SSL, but that was an overview which I have given in the previous class. So when I'll talk more about that, then I think you'll be able to understand that in much more depth. Okay, so that part is still not clear yet. Okay, so but still you have given a very good attempt into SSL part as well. But yes, few of the terminology, it clearly signifies that you have understood it, but you have not gone in depth about that, and that's the reason why, because you're not able to bring out correct word which needs to be placed when we talk about SSL part. Okay, but you have understood that. I can clearly understand that. ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे तो फिर चीजें कर लेंगे, बट रियली वेरी गुड whatever the things you have said today. So it means you are working hard in the back end. So that is what we are also expecting. ठीक है, तो चलो, we will be starting with our today's topic, and then we will be continuing with the other stuffs as well. So कल हम लोग देख रहे थे रिगार्डिंग योर सी, अब जिसको जो लोग Shreyanshi has put lots of effort in understanding all the CIDR range, कितने IPs मिलेंगे, क्या मिलेंगे, किसके लिए रिजर्व होते हैं, ऑल दो स्टफ्स. सो जो ये कर लिए हैं उनके लिए आने वाला समय और भी आसान होते जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन अ वेरी बेटर वे. ठीक है, जो नहीं किए हो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा. दैट्स द रीजन व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि कर लो बैकएंड में जो भी हम टास्क देते हैं. सो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग वर्चुअल नेटवर्क, राइट, कि हमारे पास एक अगर वर्चुअल नेटवर्क है, उसके अंदर मल्टीपल सबनेट्स हैं, तो उसी के अंदर हम लोग रिसोर्सेज वगैरह को डिप्लॉय करते हैं, राइट. And then we would try to establish communication between them, और हम देखते हैं कि we will be able to set up some sorts of communication between them. Why? Because they are falling under the same network, right? तो इसके बारे डिटेल में देख लेते हैं. तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसका लैब करेंगे पहले. ठीक है, so what I'll do, I'll just go to print, I'll just create something. So ये मेरा एक वर्चुअल नेटवर्क हो जाएगा, सपोज. ओके, दिस इज माय वर्चुअल नेटवर्क, not virtual network, इसको हम Azure data center समझते हैं suppose, and we will be having inside that data center only will be creating virtual network, right? अब ये virtual network के अंदर we will be having multiple subnets. तो ये एक subnet 1, ये एक subnet 2 हम ये बनाने वाले हैं. Fine, so these two subnets will be created. तो हमारे पास will come over here, and we will give it as name as AZ data center. Okay, Azure data center, and उसके अंदर we will be having your virtual network, right? So VNet 1 करके ऐसे दे देते हैं. ठीक है, and then we will be having your subnet 1 and subnet 2. तो हम इसको बोलते हैं web subnet. ठीक है, and stretch this a bit, इसको web subnet बोलेंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे database subnet. ठीक, so DB my web subnet. Fine, तो ये
चीजें क्रिएट करेंगे। एंड सबसे पहले हम लोग एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि चलो ये जो वीनेट 1 होगा ना, इसको हम एक CIDR रेंज देंगे विच विल बी 10.1.0.0/16। ओके, एंड ये जो वेब सबनेट होगा ना, इसको भी एक CIDR रेंज देंगे। सो 10.1.1.0/24 ये दे देंगे CIDR range, and for DB subnet we will be giving another CIDR range, so it will be like 10.1.2.0/24। अब ये उन लोगों को समझ में आ रहा होगा जो ये कल का क्लास अच्छे से समझे होंगे कि ये 1.2.0 क्यों कर रहे हैं, ये 1.1.0 क्यों कर रहे हैं, ये समझ में आ जाना चाहिए। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, यू गो बैक एंड चेक द लेक्चर अगेन एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो हम क्या बोले, एक डेटा सेंटर के अंदर वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे, वर्चुअल नेटवर्क के अंदर हम बनाएंगे ये चीज। तो अब डेटा सेंटर के अंदर सब्सक्रिप्शन होगा, सॉरी एक डेटा सेंटर के अंदर सब्सक्रिप्शन के अंदर वी विल बी क्रिएटिंग योर मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप के अंदर ही हम लोग ये रिसोर्सेस वगैरह क्रिएट करेंगे, राइट। तो अभी चलते हैं अपने एज़्योर प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई विल कम टू रिसोर्स ग्रुप, आई विल जस्ट क्लोज दिस वन। अब देखो यहाँ पे एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर रहे हो, ओके, सो लेट मी क्रिएट इट। सो ये रिसोर्स ग्रुप का नाम देखिए, सपोज सिलिकॉन आरजी, ये एक रिसोर्स ग्रुप बना रही, ईस्ट यूएस में बना रहे। आई विल गिव नेक्स्ट टैग्स, आई विल क्लिक ऑन क्रिएट, ओके। सो अब ये रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया होगा। सो दिस इज माय सिलिकॉन आरजी व्हिच इज एक्चुअली क्रिएट। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को वर्चुअल नेटवर्क बनाना है। तो आई विल कम ओवर हियर, आई विल क्लिक ऑन वर्चुअल नेटवर्क। एक वर्चुअल नेटवर्क बनाता है एंड हम यहाँ पे नाम दे देते हैं कौन सा रिसोर्स ग्रुप, सिलिकॉन आरजी में, इसका नाम दे देते हैं VNet1, जैसे कि हम पहले डिस्कस किए। अब यहाँ पे आओ IP एड्रेस के बारे में बात करें। देखो बाय डिफॉल्ट आई एम गेटिंग 10.1.0.0/16। यू माइट गेट 10.0.0.0/16 क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक वर्चुअल नेटवर्क बना हुआ है, तो दैट IP इज ब्लॉक्ड फॉर दैट। Okay. तो अभी हम यहाँ पे बोले 10.1.0.0/16, इट विल कम टू दिस वन। देखो 10.1.0.0/16 मतलब कि ये मेरे को CIDR रेंज मिल गया इसका, फाइन। अभी हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं एंड आई विल ऐड अ सबनेट। तो हम इसको बोलते हैं वेब सबनेट, ठीक है। इसका CIDR रेंज हम क्या देखेंगे, 10.1.1.0/24, राइट। तो देखो यहाँ पे भी बोल रहा है ना 251 IPs इसको मिलेगा और 5 मेरा रिजर्व होगा as your reserved addresses, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आई विल क्लिक ऑन ऐड। एक सबनेट बना लिया, एक और सबनेट बनाते हैं, क्या नाम देंगे उसका, DB सबनेट देंगे, सबनेट। और उसका CIDR रेंज हम क्या बोले थे, देंगे 10.1.2.0/24, डन। अभी फिर से हम इसको ऐड कर देते हैं। तो अभी देखो हम लोग क्या कर लिए, इफ यू लुक इनटू द डायग्राम, इफ यू लुक इनटू द डायग्राम यू विल सी कि मेरे पास यहाँ पे एक VNet बना है जिसका IP एड्रेस क्या है, CIDR रेंज क्या है 10.1.0.0/16, और एक वेब सबनेट है उसका CIDR रेंज है 10.1.1.0/24, और DB क्या है 10.1.2.0/24। दिस इज व्हाट वी हैव डन इट एज ऑफ नाउ, ठीक। तो अभी हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी टैग्स रिव्यू एंड क्रिएट, इसको रिव्यू एंड क्रिएट करते हैं। सर यस सर सबका रेंज 16 होगा नेटवर्क का, या 8 या 24 भी हो सकता है? 8 या 24 भी दे सकते हैं सर। you can give anything, 824 you can give, no problem। हम लोग ये स्टैंडर्ड लेके चलते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एक मेरा जो सबनेट होगा ना, हम एज्यूम करके चलते हैं कि उसमें मेरा 251 IP से ज्यादा नहीं होंगे, ओके। और अगर हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि नहीं, मेरा एक सबनेट के अंदर मेरे को 60,000 रिसोर्सेज, 65,000 रिसोर्सेज जाएंगे, तो उस केस में यू कीप 8, 10.0.0/8 कर दो, तो you will get lots of you can adjust lots of IP addresses, lots of resources को adjust कर सकते हो। तो ये 16 हम लोग इसलिए देख के चलते हैं ताकि वो ऑलरेडी हम एक हायर रेंज लेकर के चल रहा है। when you will give 10.0.0.0/16 मतलब कि 2 बिट कांस्टेंट होगा और बाकी सब it can be used to allocate some resources, तो उसमें अराउंड 65,536 IP एड्रेसेस you will be able to create। उसमें से रिजर्व को हटा देना है, बाकी अराउंड 65,000 you will be able to create। तो हम जानते हैं कि उतना ज्यादा रिसोर्सेस हम एक नेटवर्क के अंदर क्रिएट नहीं करेंगे, राइट। सो दैट्स द रीजन व्हाई हम लोग ये 16 ही लेकर के चलते हैं एंड देन आगे फिर हम 24 से स्प्लिट कर देते हैं। दैट इज हाउ वी जनरली वर्क, ठीक है। बट इफ यू वांट टू गिव यू कैन, या। चलो अब मेरा VNet बन गया। सो मतलब कि ये मेरा जो टास्क था, दिस इज
डन फॉर मी, राइट? वर्चुअल एक मेरा डेटा सेंटर है, वीनेट है, वेब सबनेट एंड डीबी सबनेट सब बन गया, राइट? इफ यू वांट टू कम टू सबनेट एंड चेक, तो देखो ये सबनेट का भी रेंज दिख गया, एंड ओवरव्यू में आ जाना तो यहाँ पे वीनेट के बारे में पता चल जाएगा। फाइन, सो एवरीथिंग इज डन फॉर मी राइट नाउ, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे आते हैं, आई विल ड्रॉ समथिंग। व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट नाउ वर्चुअल मशीन्स इनसाइड इट। क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, तो एक वेब सर्वर बनाएंगे और एक डेटाबेस सर्वर बनाएंगे। और हम हमेशा क्या बोले कि जब भी मेरा एक वेब सर्वर और डेटाबेस सर्वर होगा, तो वेब सर्वर को हम पब्लिक आईपी एसोसिएट करेंगे, डेटाबेस सर्वर को पब्लिक आईपी हम नहीं देंगे। ओके, तब हम चलो एक काम करते जल्दी से, क्विकली आई विल गो एंड डिप्लॉय योर वेब सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर। आई विल कम ओवर हियर, आई विल गो टू वर्चुअल मशीन, आई विल क्रिएट वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप मेरा अपना सेलेक्ट कर लेते हैं, वर्चुअल मशीन का नाम दे देते हैं वेब सर्वर। फाइन, उसके बाद यहाँ पे आते हैं एंड दिस इज डन, दिस इज डन। यहाँ पे यू गिव दिस ऑल पोर्ट्स नॉट रिक्वायर्ड बट दे देते हैं। नेटवर्किंग में आते हैं एंड नेटवर्किंग में वीनेट 1 सेलेक्ट करेंगे और इसको हम रखेंगे, वेब सर्वर है ना तो वेब सबनेट में रखते हैं, ठीक है? और इसको हम पब्लिक आईपी नन कर देते हैं, हम इसको पब्लिक आईपी नहीं देंगे। आई विल गो टू मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एडवांस टैग्स एज इट इज रिव्यू एंड क्लियर। I'll click on create. Done. I'll click on return to this. तो अभी क्या कोई मेरे को बता सकता है, ये जो हम अभी वेब सर्वर बनाए, ये जो अभी वेब सर्वर हम बनाए हैं, इसका नाम जो हम दिए हैं अभी वेब सर्वर, ये वेब सर्वर का आईपी एड्रेस क्या होगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस इसको क्या एलोकेट होंगे? एनीबॉडी? किस रेंज में एलोकेट होंगे? ट्राई तो करो, रॉन्ग होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वेब सर्वर किस में बनाए हैं, इनटू माय वेब सबनेट। तो क्या पॉसिबिलिटी है, ये सर्वर को क्या आईपी मिलना चाहिए, किस रेंज में आईपी मिलना चाहिए? सर 10.1.1 मतलब दैट इज फाइन, 10.1.1 मतलब किस रेंज में होना चाहिए हमको? 10.1.4 से लेके 255 तक, 254 तक, राइट? तो मतलब अभी देखो यहाँ पे मेरे पास वेब सबनेट है, इसका आईपी रेंज क्या है, इसका है 10.1.1.0/24, मतलब कि ये 3 कांस्टेंट होंगे, 10, 1 और 1 कांस्टेंट होंगे, और बाकी इसके अंदर 0 से लेके 255 तक होता है। तो हम बोल रहे हैं कि 0, 1, 2, 3 एंड 255 विल बी रिजर्व। तो बाकी और क्या बचा, 10.1.1.4 से लेकर के 10.1.1.254 तक के बीच का आईपी इसको मिलेगा, राइट? तो एज्योर के केस में क्या होता है ना, सीक्वेंस में फॉलो करता है, मतलब कि पहले ये एलोकेट करेगा 10.1.1.4, फिर अगर वो रिजर्व हो जाए तो फिर 10.1.1.5, फिर अगर वो रिजर्व हो गया 10.1.1.6, ऐसे करके वो एलोकेट करते जाता है। तो चूंकि ये मेरे नेटवर्क में, ये पर्टिकुलर सबनेट में आई डोंट हैव एनी अदर रिसोर्सेस, राइट? तो अभी जो ये क्रिएट करेगा, इसको जो वेब सर्वर ये क्रिएट करेगा उसको आईपी एलोकेट करेगा 10.1.1.4। ओके, लेट अस वेरीफाई दैट। अभी मेरा ये वर्चुअल मशीन बना, गो टू रिसोर्सेस अगर हम करेंगे तो इफ यू सी, तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 10.1.1.4 एंड दैट इज व्हाट आई 10.1.1.4।
करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस, अब देखो इसको पब्लिक आईपी भी मिला हो, क्यों? क्योंकि हम पब्लिक आईपी भी दे करके चले थे। ओके, हम पब्लिक आईपी डिसेबल कर दिए थे क्या? नन कर दिए थे, राइट? ओके, बट बाय डिफॉल्ट मेरे को इसको पब्लिक आईपी देने थे। ओके, लेट मी सी अगर बाहर से इफ आई कैन अटैच। मेरे को एक्चुअली इसको पब्लिक आईपी एड्रेस एक देने थे। देखते हैं, लेट मी सी आईपी इफ आई लुक इनटू पब्लिक आईपी एड्रेसेस। ठीक है, लेट मी क्रिएट अ पब्लिक आईपी एड्रेस। ये हम दे रहे वेब सर्वर आईपी। ये पब्लिक आईपी एक मेरे को क्रिएट करके दे देगा। आई क्लिक ऑन रिव्यू एंड क्रिएट। आई क्लिक ऑन क्रिएट। मेरे को एक्चुअली उसको पब्लिक आईपी देने थे, बट बाय मिस्टेक आई हैव नॉट अलाउड दैट पब्लिक आईपी एड्रेस। डेटाबेस को मेरे को नहीं करना, ये तो वेब सर्वर। Okay, done. I'll go to resource. I can click on associate. किसको एसोसिएट करना है? तो यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस, और कौन सा नेटवर्क इंटरफेस है? ये देखो, वेब सर्वर 891, क्योंकि यही एक मेरा सर्वर अभी बना है, तो उसी के साथ एसोसिएट कर देंगे। आई क्लिक ऑन ओके। तो जनरली इफ सपोज यू आर क्रिएटिंग अ रिसोर्स और वहां पे आप पब्लिक आईपी एड्रेस दे दिए हो, सो नो प्रॉब्लम, यू कैन लीव दैट एज इट इज। मतलब ये जो प्रोसेस अभी हम कर रहे हैं, ये करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट? बट अभी हम बाय मिस्टेक वहां पे पब्लिक आईपी एड्रेस को डिसेबल कर दिए थे, बिकॉज ऑफ दैट इट हैज क्रिएटेड एन इशू, राइट? तो अभी नो प्रॉब्लम, वही हम चेक करते हैं। देखो, इसको एक पब्लिक आईपी एड्रेस अलोकेट हो चुका है, राइट? सो अभी हम क्या करते हैं, ये सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं हम। तो इसको दो आईपी हो गए, एक पब्लिक आईपी विच इज दिस वन, और एक प्राइवेट आईपी विच इज दिस वन, राइट? अब हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस सर्वर बनाते हैं। रिसोर्स ग्रुप विल बी सिलिकॉन आरजी। वर्चुअल मशीन का नाम देते हैं डीबी हाइफन सर्वर। यहाँ पे लीव इट एज इट इज। यहाँ पे आई क्लिक ऑन दिस और आई क्लिक ऑन डिस्क, कम टू नेटवर्किंग, और इसको मेरे को किस में रखना है? डीबी सबनेट में रखना है। और इसको आईपी देना है क्या? नहीं, पब्लिक आईपी इसको नहीं देना। हम बाय मिस्टेक वेब सर्वर को भी पब्लिक आईपी नहीं दिए थे, बट उसको दे के चलो। ठीक है, जब दे के चलोगे तो फिर पब्लिक आईपी एड्रेस जो अभी वापस से क्रिएट करके एसोसिएट किए, वो पार्ट नहीं करना पड़ेगा। ओके, व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, एडवांस, टैक्स, रिव्यू एंड क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, एक डेटाबेस सर्वर क्रिएट कर दिए विच इज कॉल्ड एज अ डीबी सर्वर। अब इसको आईपी क्या मिलेगा बताओ? इसको क्या आईपी एड्रेस मिलेगा? 10.1.2.4. Everybody is okay with this? 10.1.2.4, is it correct? भाई बताओ, अदर पीपल।
दिव्यांशु, श्रेयांशी, Yes, sir. So it can be. इट विल बी। ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस इसको मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डेटाबेस सबनेट के अंदर कोई भी रिसोर्सेस हम क्रिएट किए हैं क्या? नहीं क्रिएट किए हैं, तो इसको पहला आईपी एड्रेस ही मिलेगा 10.1.2.4। उसके बाद ये नेक्स्ट अगर डिप्लॉय करेंगे तो उसको 10.1.2.5 मिलेगा। ठीक है, तो अभी जब हम ये डिप्लॉय कर दिए हैं तो लेट अस ट्राई रीचेकिंग दिस। हो अभी क्रिएट नहीं किया। ठीक है, I'll download this key. I'll click on return to create virtual machine. Okay, तो चलो what I'll do, I'll go to resources. अब इसका आईपी एड्रेस को वैलिडेट कर लो 10.1.2.4 10.1.2.4। ओके, सो दिस इज डन। नेक्स्ट, अब देखो, ये पर्टिकुलर सर्वर को एक पब्लिक आईपी है, ये पर्टिकुलर सर्वर को एक प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी वेब सर्वर को है, प्राइवेट आईपी भी है, एंड डीबी सर्वर को केवल प्राइवेट आईपी। सो दिस इज हाउ जनरली वी यूज टू डिप्लॉय। ठीक है, तो अभी अगर हम यहाँ पे आए और अगर हम डीबी सर्वर को अगर कनेक्ट करने का कोशिश करें, ओके, ऑल्दो आई हैव अ पीएम फाइल, I will not be able to connect to this server. Why I will not be able to connect to this server? Because इसको एक प्राइवेट आईपी एलोकेट है, और हम जानते हैं प्राइवेट आईपी से हम डायरेक्टली इंटरनेट से प्राइवेट आईपी को हिट करके आई कैन नॉट रीच, राइट? मेरे को पब्लिक आईपी चाहिए, तभी जाकर के हम क्या कर पाएंगे, सर्वर को कनेक्ट कर पाएंगे। ये प्राइवेट आईपी है, दिस इज यूज्ड फॉर द इंटरनल कम्युनिकेशन, दैट्स इट। ठीक है, तो अब हम इसको तो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, फाइन, तो मतलब कि इट इज ओके, क्योंकि डेटाबेस को कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी मेरा इंटरनेट से उसको कनेक्ट कर पाए, तो दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम। अब हम ये काम करते हैं, आई विल बी कनेक्टिंग टू माई दिस सर्वर, वेब सर्वर। अब वेब सर्वर को तो हम चाहते हैं कि उसको पब्लिक आईपी मिले ताकि लोग उसको कनेक्ट कर पाए, करेक्ट? तो अभी यहाँ पे इफ आई गो टू कनेक्ट and if I copy this one, come over here, paste this one, तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हाउ डू वी कनेक्ट इट? I'll paste, देखो हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे, कनेक्ट कर पा रहे हैं हम इसको, why? Because this is a public IP। फाइल में जाते हैं, हम मेरे पास वेब सर्वर डॉट pm फाइल होगा एक यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर, माय गॉड वी हैव लॉट्स ऑफ की, और इसका नाम क्या था? आई थिंक वेब सर्वर डॉट की। I'll click on it, देखो कनेक्ट कर गया, राइट? तो अभी हम क्या करते हैं, sudo su करते हैं, and to c कंट्रोल l, ओके। अब हम वेब सर्वर को आ गए। अब हम क्या वेब सर्वर से क्या हम पिंग कर पाएंगे
किसको, डेटाबेस सर्वर को। इफ आई डू पिंग, डेटाबेस सर्वर का प्राइवेट आईपी क्या है 10.1.2.4, राइट। क्या हम पिंग कर पाएंगे? तो देखो हम पिंग कर पा रहे हैं। क्यों पिंग कर पा रहे हैं? बिकॉज वी आर इनटू अ सेम नेटवर्क। तो हम डेटाबेस का प्राइवेट आईपी से भी हम उसको पिंग कर पाएंगे। तो क्या हम वेब सर्वर के अंदर बैठ करके, कैन आई गो टू माई डेटाबेस सर्वर, क्या हम वेब सर्वर के अंदर जा करके कैन आई एसएसएच इनटू माय डेटाबेस सर्वर? आई कैन। कैसे? देखो यहाँ पे उसको कनेक्ट करने का कमांड क्या है, यहाँ पे ये कमांड था, राइट, एसएसएच एज़्योर, ये कमांड, राइट। तो यहाँ पे मेरे को उसका की फाइल का भी नाम देना पड़ेगा, राइट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल कम ओवर हियर इनटू माय डेटाबेस सर्वर। ठीक है, अब एसएसएच का इसका फाइल लेते हैं एंड इफ आई पेस्ट इनसाइड दिस पर्टिकुलर सर्वर, और यहाँ पे जिसका की फाइल का नाम क्या था, is db hyphen server hyphen underscore key dot pm, ये होना चाहिए, विल वेरीफाई। इसका नाम क्या है, db hyphen server hyphen key, ठीक है, फाइन डॉट pm फाइल। तो अगर हम इसको एंटर करें, देखो यहाँ पे बोल रहा है यस कर रहे, देखो परमिशन डिनाइड बोल रहा है, एंड फिर क्या बोल रहा है, db server key dot pm is not accessible, no such file or directory। मतलब जहां से बैठ करके हम SSH कर रहे हैं, क्या वहां पे ये मेरा pm फाइल है? तो नहीं है। तो क्रिएट कर लेते हैं pm फाइल, vi। अगर एक फाइल हम क्रिएट करते हैं, so I'll do like this, vi, we are using vi एडिटर और pm फाइल एक बना रहे हैं, ठीक है। I will press I की। अब इसके अंदर का कंटेंट क्या होना चाहिए, इसके अंदर का कंटेंट होना चाहिए यही जो यहाँ पे है मेरे पास। I'll open, I'll do a control C, I'll come over here, I'll do a paste to terminal। जैसे पेस्ट करते हैं, I'll put an escape colon wq। Once we do it, we have to give a permission chmod 400 किसको, db server key.pm, fine। Once we do this, अब अगर हम SSH करने की कोशिश करें तो देखो हम SSH कर लिया, हम किसके अंदर आ गए, हम DB सर्वर के अंदर आ गए। तो देख रहे हो, मतलब कि अगर एक नेटवर्क के अंदर अगर हम हैं, सो आई विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ योर प्राइवेट आईपी आल्सो। अब हमको डेटाबेस सर्वर के अंदर जाना था, तो मेरे डेवलपर बोले कि यार मेरे को डेटाबेस के अंदर जाना है, आई वांट टू मेक सम स्कीमा चेंजेस एंड कुछ करना है मेरे को। तो हम बोल सकते हैं उसको कि ठीक है, वेब सर्वर उसी के नेटवर्क के अंदर है, आप एक काम करो, वेब सर्वर को आप लॉग इन कर सकते हो, राइट, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू विल बी एबल टू लॉग इन। आप लॉग इन करके आप डेटाबेस के अंदर घुस जाओ वहां से, क्योंकि अगर आप सेम नेटवर्क में रहोगे तो यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, राइट। तो फिर देखो हम डेटाबेस के अंदर आ गए। अगर हम डेटाबेस के अंदर जा करके if I'll do sudo su and if I'll do cd, अगर डेटाबेस के अंदर जा करके अगर हम पिंग करना चाहें किसको, अपने वेब सर्वर को, तो वेब सर्वर का आईपी एड्रेस क्या था इधर, तो यहाँ पे लिखे थे, राइट, 10.1.1.4। तो अगर हम यहाँ से बैठ करके 10.1.1.4 को अगर पिंग करते हैं तो देखो मतलब ये 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है। मतलब हम डेटाबेस से बैठ करके भी पिंग कर पा रहे हैं वेब सर्वर को, वेब सर्वर से भी डेटाबेस को पिंग कर पा रहे हैं। ओके, अगर मेरे को अभी हम डेटाबेस सर्वर के अंदर हैं, बट अल्टीमेटली हम वेब सर्वर के अंदर थे, वेब सर्वर के अंदर जा करके हम डेटाबेस सर्वर के अंदर आ गए, डेटाबेस सर्वर के अंदर आकर के आई एम एबल टू पिंग इट। अब मेरे को डेटाबेस सर्वर से वेब सर्वर को जाना वापस, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट लिखेंगे। जैसे ओके, आई विल राइट एग्जिट। जैसे एग्जिट लिखेंगे तो देखो अभी हम रूट यूजर से आई एम कन्वर्टेड इनटू एज़्योर यूजर। उसके बाद फिर हम अगर एक बार और एग्जिट लिखेंगे तो देखो अभी डेटाबेस सर्वर से आई एम कनेक्टेड टू माय वेब सर्वर। देख रहे हो, सो दिस इज हाउ वी हैव टू आल्सो वर्क। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई अगर मेरे पास एक नेटवर्क है तो वो नेटवर्क के अंदर जितने भी सबनेट होंगे और उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेस होंगे, दे विल बी बाय डिफॉल्ट दे विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ओके, एंड अगर मेरे को डेटाबेस सर्वर तक जाना है, डेटाबेस को हम लोग को हमेशा प्राइवेट आईपी देना है, नॉट पब्लिक आईपी। अगर मेरे को जाना है डेटाबेस सर्वर के अंदर तो जरूरी नहीं है कि हम वेब सर्वर के थ्रू अंदर जाएं। हम क्या कर सकते हैं, एक और सर्वर हम क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट वन मोर सर्वर व्हिच विल बी इनटू दिस पर्टिकुलर सबनेट ओनली। किसमें, पब्लिक सबनेट के अंदर या फिर वेब सबनेट के अंदर अगर एक और हम सर्वर क्रिएट कर लें, तो अगर हमको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बोल रहा है कि मेरे को एक्सेस चाहिए डेटाबेस सर्वर का, तो हम क्या बोलेंगे, इसको पब्लिक आईपी एक दे देंगे। ये जो मेरा सर्वर है
ये जो हम एक सर्वर बनाएंगे इसको हम एक पब्लिक आईपी दे दें, ओके, दिस पर्टिकुलर सर्वर, इसको पब्लिक आईपी दे देंगे, तो पब्लिक आईपी के थ्रू दे विल बी एबल टू एसएसएच इनटू दिस सर्वर। जैसे ही ये सर्वर के अंदर आ गया तो फिर ये सर्वर के अंदर बैठ करके वो डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। तो इस टाइप के केस को हम क्या बोलते हैं, बैस्टियन होस्ट, मतलब इस टाइप का सर्वर को हम लोग बोलते हैं बैस्टियन होस्ट। ठीक है, इसका काम कुछ नहीं होता, एक सिंपल सा सर्वर होता है, इट इज जस्ट एक्टिंग लाइक एज अ जंप सर्वर। किसके जैसा काम करता है, एज अ जंप सर्वर। तो मतलब कि मेरे पास अगर एक सर्वर हम बना देते हैं इनटू वेब सबनेट तो उसको पब्लिक आईपी मिल जाएगा, क्योंकि उसका काम कुछ नहीं रहेगा, इट विल बी एक्टिंग लाइक ए जंप सर्वर। तो डेवलपर क्या करेंगे, वो बेस्टियन होस्ट को कनेक्ट करेंगे, उसके अंदर चले जाएंगे एसएसएच करके, फिर वहां से बैठ करके वो डेटाबेस को कनेक्ट कर लेंगे। जैसे अब मेरे डेवलपर मेरे बेस्टियन होस्ट के अंदर चले गए, मतलब सेम नेटवर्क के अंदर आ गए, जब सेम नेटवर्क के अंदर आ गए तो हम प्राइवेट आईपी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। So this is how we generally used to set up into industry also. Making sense, guys, till this point? समझ में? I am not able to hear. I see few people are Yes, sir. asking. Oh, Yes, sir. Yes. ठीक है। Yes, sir. तो अभी ये अगर जिसको 30% भी समझ में आया, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। इसको जा करके घर में 2 बार 3 बार देखना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज करो मेरे पास एक ऐसा नेटवर्क है, जो लास्ट में हमने एक ओवरव्यू दिए। सपोज करो मेरे पास एक ऐसा नेटवर्क है, दिस इज नेटवर्क 1 एंड आई हैव अनदर नेटवर्क 2, आई हैव अनदर नेटवर्क 3। इसके अंदर मेरे पास एक सबनेट है, या फिर हो सकते हैं मेरे पास 2 सबनेट हो, एक वेब सबनेट, एक डेटाबेस सबनेट। यहाँ पर भी मेरे पास क्या हो, एक वेब सबनेट हो, एक डेटाबेस सबनेट। यहाँ पर भी मेरे पास क्या हो, एक वेब सबनेट हो, एक डेटाबेस सबनेट हो। ऐसा हम लोग अभी नहीं करके चल सकते, या फिर ऐसा हम सेटअप आई थिंक कर भी पाएंगे, बट आई डोंट नो, देयर कैन बी सर्टेन लिमिटेशन ऑफ vCPU कि हम लोग इतना vCPU से ऊपर नहीं कर सकते। ओके, सो लेट अस मेक इट सिंपल। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सेटअप नहीं करेंगे, हम लोग एक काम करेंगे, ऐसा सेटअप करेंगे कि मेरे पास एक नेटवर्क 1 होगा, ओके, इसके अंदर मेरे पास 2 सबनेट होंगे, एक वेब सबनेट, एक डेटाबेस सबनेट। एक हम नेटवर्क 2 बनाएंगे जिसके पास केवल मेरे पास एक डेटाबेस सबनेट होगा, और एक मेरे पास नेटवर्क 3 होगा जिसके पास एक और डेटाबेस सबनेट होगा। ठीक है, तो अभी सपोज करो ये मेरा वेब सबनेट है, ये मेरा डीबी सबनेट है, ये भी मेरा डीबी सबनेट है, ये भी मेरा डीबी सबनेट है। ओके, इसके अंदर मेरे पास एक सर्वर होंगे, इसके अंदर मेरे पास सर्वर होंगे, इसके अंदर मेरे पास सर्वर होंगे, इसके अंदर मेरे पास सर्वर होंगे। तो सपोज करो मेरे पास एप्लीकेशन में कुछ ऐसा डेटा आ रहा है, तो यहाँ पे मान लो मेरे पास एप्लीकेशन में 3 टाइप का डेटा आ रहा है, एक्स टाइप का डेटा, वाई टाइप का डेटा, जेड टाइप का डेटा। तो अगर वो डेटा एक्स टाइप का है तो मेरे को ये वेब सर्वर शुड बी एबल टू राइट दोस डेटा इनटू दिस डेटाबेस। अगर वो वाई टाइप का है तो इट शुड बी एबल टू राइट इट इनटू दिस डेटाबेस। अगर वो जेड टाइप का, इट शुड बी एबल टू राइट दिस इनटू दिस डेटाबेस। तो ये मेरा एक्स टाइप का इसमें रखेगा, वाई का इसमें लिखेगा, जेड का इसमें रखेगा। अब देखो प्रॉब्लम ये होगा कि ये मेरा एक नेटवर्क, अलग नेटवर्क है, ये मेरा एक दूसरा नेटवर्क है, ये मेरा एक तीसरा नेटवर्क है। ओके, मेरे पास 3 डिफरेंट नेटवर्क है, और जब 3 डिफरेंट नेटवर्क होंगे तो एक नेटवर्क के रिसोर्सेस आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। क्या 2 डिफरेंट नेटवर्क के रिसोर्सेस आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे? नो नो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये डेटाबेस को एक पब्लिक आईपी दे सकते हैं, ये भी डेटाबेस को एक पब्लिक आईपी दे सकते हैं। तब ये क्या कर सकता है, वेब सर्वर मेरे ये डेटाबेस को कनेक्ट करेगा और पब्लिक आईपी के थ्रू दे विल बी एबल टू एक्सेस दैट। बट अभी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज कि अगर हम पब्लिक आईपी देंगे तो सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा, राइट? कोई भी मेरा डेटाबेस तक आ सकता है। तो मेरे को अब ऐसा चीज चाहिए कि भाई इसको प्राइवेट आईपी ही दे करके रखो, बट अल्टीमेटली माय वेब सर्वर शुड बी एबल टू राइट सम डेटा इनटू दिस डेटाबेस। क्या बोल रहे हैं? अल्टीमेटली आप इसको पब्लिक आईपी ही दे करके रखो, एंड आई शुड बी एबल टू राइट सम डेटा इनटू दिस डेटाबेस, करेक्ट? तब इस टाइप का सिनेरियो कैसे सेटअप करें? तो हम क्या बोलते हैं, लेट मी ड्रॉ इट so that things will be more clear to you all. I'll click on new, don't save. अभी देखो हम क्या बोले कि मेरे पास एक नेटवर्क 1 रहेगा, एक नेटवर्क 2 रहेगा, एक नेटवर्क 3 रहेगा, फाइन। और ये जो नेटवर्क 1 रहेगा इसके अंदर मेरे पास 2 सबनेट रहेंगे, एक वेब सबनेट, एक मेरे पास डेटाबेस सबनेट। यहाँ पे मेरे पास एक केवल डेटाबेस सबनेट होगा, यहाँ पर भी मेरे पास केवल एक डेटाबेस सबनेट होगा, फाइन।
तो अल्टीमेटली हम क्या बोले, यहाँ पे मेरे पास इसको बोल देते हैं VNet1, VNet1, ठीक। इसको हम बोलते हैं Web1, ओके। और इसको हम बोलेंगे DB1, ये सबनेट। तो VNet1, Web1, DB1, ये सब सबनेट। सिमिलरली आई विल बी क्रिएटिंग दिस वन, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा मेरा VNet2। तो लेट मी राइट लाइक दिस, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं VNet-2, ठीक है। एंड इसके अंदर का जो होगा चीजें वो मेरा होगा सबनेट 2। So this will be my, सॉरी, इसको हम दे देते हैं DB2, ठीक है। एंड इसको हम नाम दे देते हैं VNet3, और इसको हम नाम दे देते हैं DB3। तो ये DB सबनेट, ठीक है, चलो फाइन। तो ये VNet2 हो गया, VNet3 हो गया, ये सब सबनेट। अब हम क्या करते हैं, सबके अंदर एक एक रिसोर्सेज डिप्लॉय करते हैं। ये मेरा एक वेब सर्वर हो जाएगा, ये मेरा एक डेटाबेस सर्वर हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा एक डेटाबेस सर्वर 2 हो जाएगा, और ये मेरा एक डेटाबेस सर्वर 3 हो जाएगा, फाइन। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को अगर मेरा डेटा किस टाइप का रहेगा, हम बोले 3 टाइप का रहेगा, एक्स टाइप का रहेगा, वाई टाइप का रहेगा, जेड टाइप का रहेगा, फाइन। अगर मेरा ये वेब से डीबी को कनेक्ट करेंगे, मतलब अगर एक्स टाइप का डेटा आया तो वी विल बी कीपिंग इट ओवर हियर, फाइन। मतलब ये एक्स टाइप का डेटा यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। लेट मी पुट इट सम डिफरेंट कलर। अगर एक्स टाइप का डेटा रहा, इट इज गोइंग टू पुट इट ओवर हियर, ठीक है। एक्स टाइप का डेटा को इधर रखते हैं। अगर मेरा वाई टाइप का डेटा आया तो इट शुड बी एबल टू कीप ओवर हियर, ओके। अगर ये मेरा वाई टाइप का डेटा रहा तो इट शुड बी एबल टू पुट ओवर हियर। अगर ये मेरा Z टाइप का डेटा रहा तो इट शुड बी एबल टू पुट ओवर हियर। तो अल्टीमेटली अगर देखो XYZ, राइट। तो अगर मेरा ये वर्चुअल नेटवर्क है, इसके अंदर वेब सबनेट है, दूसरा है मेरा डेटाबेस सबनेट, इसके अंदर वेब सर्वर है, DB सर्वर है। ये मेरा वर्चुअल नेटवर्क 2 है, इसके अंदर मेरा DB सर्वर 2 है, एंड यहाँ पे मेरा वेब सबनेट, मेरा डेटाबेस सबनेट 3 है, और उसके अंदर मेरा DB3, ओके। तो अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को स्टैब्लिश करना है कम्युनिकेशन। हम चाहते हैं कि मेरा डेटाबेस जो 2 होगा उसको हम कोई भी पब्लिक आईपी एड्रेस ना दें, बट आइडियली आई शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद देम। तो एक काम करते हैं, अभी जितना सेटअप किया ना, इतना सेटअप पहले डिप्लॉय करते हैं, देन वी विल बी टेस्टिंग, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, ये जो भी मेरा बना हुआ था ना, आई विल डिलीट दिस सो दैट ये कंफ्यूजन ना रहे। आई विल डिलीट दिस सिलिकॉन, डिलीट डिलीट।
we'll have to wait for some more time. Done. We're done. I'll close this one. अभी refresh करके देखते हैं. So it is done. Okay. You guys are there with me? Yes, sir. Yes, तो sir. चलो अब क्या करते हैं, इस टाइप का एनवायरनमेंट बनाते हैं. तो VNet 1 बनाएंगे, VNet 2 बनाएंगे, VNet 3 बनाएंगे सबसे पहले. ठीक है. तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप बना लेते हैं. तो यहाँ पे सिलिकॉन आरसी. डन. I'll go to tags, review and create. चलो रिसोर्स ग्रुप बन गया. अब हम क्या करते हैं, वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे. वर्चुअल नेटवर्क, I'll create वर्चुअल नेटवर्क. तो हम बोलते हैं VNet. ये कौन से रिसोर्स ग्रुप में, रिसोर्स ग्रुप 1. इसको नाम दे देते हैं VNet-1. ठीक है. आईपी एड्रेस, इसको रेंज क्या दे रहे हैं, 10.1.0.6. ठीक है, फाइन. इसको रिमूव कर रहे हैं. आई विल ऐड अ सबनेट. इसको हम बोल रहे हैं वेब 1 देकर. ठीक है, वेब 1 सबनेट. 10.1.1.0/16 इसको एक दे दे रहे हैं रेंज, सॉरी /20. ओके, डन. आई विल क्लिक ऑन ऐड. जैसे ऐड कर दें, एक और सबनेट इसके अंदर बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे DB-1. ठीक, इसको नाम दे देते हैं 10.1.2.0/24. फाइन. आई क्लिक ऑन ऐड. तो ये मेरा DB1 हो गया, वेब 1. ये दो सबनेट बना दिए. फाइन. सिक्योरिटी, टैग्स, रिव्यू एंड क्रिएट. आई क्लिक ऑन क्रिएट. डन. तो अब मेरा ये वर्चुअल नेटवर्क एक बन गया, विच इज योर VNet 1. और उसके अंदर आई हैव 2 सबनेट्स. ये देखो वर्चुअल नेटवर्क 1 एंड उसके अंदर मेरे सबनेट्स कौन कौन से हैं. इफ आई कम ओवर हियर, गो टू सबनेट, तो यहाँ पे मेरे पास 2 सबनेट. राइट. तो अभी मेरा क्या सेटअप रेडी हो गया, दिस सेटअप, वेब 1 एंड DB1 मेरा बन गया. अब मेरे को VNet 2 बनाते हैं, VNet 3 बनाते हैं. आ जाओ वर्चुअल नेटवर्क में फिर से. यहाँ पे हम बोलते हैं VNet-2. आईपी एड्रेस इसको यही रहने देते हैं. इसका सबनेट हम एक बना देते हैं, विच इज योर DB2. ठीक. अभी इसका रेंज क्या दे देंगे हम लोग, 10.2.1.0/24. नो प्रॉब्लम, आई विल ऐड. अब ये बन गया मेरा नेक्स्ट सबनेट. डन. आई क्लिक ऑन गो टू रिसोर्सेस. तो मेरा ये VNet 2 है एंड इसको आईपी एड्रेस मिला 10.2.0/16 और इसका सबनेट कौन सा है, सबनेट इज DB2. तो यहाँ पे देखो VNet 2 बन गया, उसके अंदर DB2 का सबनेट भी बन गया. अब VNet 3 बनाते हैं और एक DB3 का सबनेट बनाते हैं.
Okay. Virtual network. Create. अब यहाँ पे हम बोलते हैं VNet -3 और यहाँ पे हम बनाते हैं सबनेट -3। इसका नाम क्या देते हैं? DB3, राइट? So let me give DB3 only so that it is not going to create confusion. इसको IP एड्रेस क्या दे देते हैं? 10.3.1.0/20. Fine. I'll click on add. I'll click on next, review and create. I'll click on create. Okay, यहाँ पे deployment succeeded दिखा रहा है. Let me refresh this. Okay, done. I'll go to resources. What is happening? देखो यहाँ पे DB3 बन गया, DB3 वाला सबनेट, and this is your VNet 3. Okay, VNet 3 और उसको IP रेंज क्या मिला है? This is the IP range 10.3.0.060. ठीक है, अब ये काम मेरा सेटअप हो गया. अब एक काम करते हैं, सबके अंदर जा जाके एक वर्चुअल मशीन बना लेते हैं. खाली वेब सर्वर को हम क्या देंगे? पब्लिक आईपी देंगे. डेटाबेस, सारे डेटाबेस सर्वर को हम देंगे प्राइवेट आईपी. ठीक है, तो चलो लेट अस क्विकली गो टू वर्चुअल मशीन. एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं. रिसोर्स ग्रुप का नाम इज दिस वन. इसका नाम दे देते हैं Web1 ही नाम दे देते हैं क्योंकि वेब सर्वर का है, राइट? Web1 नाम दे दी और इसको हम किस में रखेंगे? वेब सबनेट में ही रखेंगे. यहाँ पे जरूरी नहीं है पोर्ट्स इनेबल करो, बट हम कर दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम. इसको अनटिक करके चलना, नहीं भी करे तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर अनटिकिंग है. ठीक है, यहाँ पे देखो VNet 1 के अंदर मेरे को इसको डिप्लॉय करना है. इनटू विच वन? Web1 के अंदर डिप्लॉय करना. ठीक है, और इसको एक पब्लिक आईपी भी देना है. दैट इज नेक्स्ट, मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एडवांस टैग्स रिव्यू एंड क्रिएट. I'll click on download private key and create resource. Done. अभी हम क्या कर रहे हैं? देखो ऑटोमेटिकली रिटर्न हो गया. Will we have to wait for some? Done. Go to resource. तो अभी देखो इसको मिला है पब्लिक आईपी भी और प्राइवेट आईपी भी 10.1.1.4. परफेक्ट, यही चाहिए था मेरे को. अब मेरे को क्या चाहिए? एक और सर्वर बनाएंगे हम इनटू माय डेटाबेस सबनेट, इनटू माय DB1. ठीक है, तो आई विल क्रिएट अ सर्वर. यहाँ पे हम बोल रहे हैं DB1 दे दो सर्वर का नाम. लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल डू वन थिंग. यहाँ से हम सबको डिलीट करते हैं और Web1 नाम का अभी बना, राइट? सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिलीट दिस वन. इसका जरूरत नहीं. अभी एक Web1 का मेरे पास बना है की. ओके, अभी हम DB1 का एक बना रहे हैं सर्वर. एंड व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ऐड दिस होल थिंग्स. आई विल डू नेक्स्ट. यहाँ पे अनटिक कर दो, नेक्स्ट. एंड यहाँ पे मेरे को इसको DB सबनेट में रखना है, तो इट इज योर DB1 सबनेट. और इसको एक आईपी देना है क्या? हम बोल रहे हैं नहीं, इसको आईपी मत दो, डेटाबेस सर्वर आईपी नहीं. I'll click on to management monitoring advanced tags review and create. I'll click on create.
I'll click on download private key and resource. Done. Done. I'll click on go to resources. अब ये मेरा डेटाबेस भी बन गया है एंड देखो इसको पब्लिक आईपी नहीं मिला, इसको प्राइवेट आईपी मिला, दैट इज फाइन। तो मतलब कि अभी मेरा सिनेरियो सेटअप कहाँ पे हो गया, ये मेरा वर्चुअल नेटवर्क, ये मेरा वेब सबनेट, ये मेरा डेटाबेस सबनेट, इसके अंदर एक मेरा वेब सर्वर बन गया, इसके अंदर मेरा एक डेटाबेस सर्वर बन गया। वेब सर्वर को पब्लिक आईपी भी मिला, प्राइवेट आईपी भी, डेटाबेस को प्राइवेट आईपी ही केवल मिला, नॉट पब्लिक आईपी। तो चलो एक बार इसको वेब सर्वर को कनेक्ट करके देख लेते हैं और डेटाबेस को पिंग करके देख लेते हैं, जो कि मेरा वर्चुअल नेटवर्क 1 में ही है, whether we are able to do that ping or not. एक एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ठीक है, I'll go to virtual machine। अब वेब को कनेक्ट करते हैं, go to connect। Let me close the previous sessions। I'll paste here and इसको हटा देते हैं, press enter, click on accept save। I have to select your web file, pm file, web1.key। लो इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब हो गया sudo su cd, फाइन, कंट्रोल एल। अब यहाँ से बैठ करके अगर हम पिंग करना चाहें इसको डेटाबेस सर्वर पे, तो उसका आईपी क्या है, डेटाबेस सर्वर का आईपी क्या है। इफ यू कम टू ओवरव्यू, इसका आईपी क्या है, 10.1.2.4, 10.1.2.4। देखो हम इसको पिंग भी कर पा रहे हैं क्योंकि ये दोनों सेम नेटवर्क में है, तो आपस में पिंग हो पा रहा है एंड वी आर एबल टू कनेक्ट। लेकिन अगर हम इसको बाहर से एसएसएच करना चाहें डेटाबेस सर्वर, तो क्या हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी पहला लाइन में देख लें, व्हाई, बिकॉज इसको प्राइवेट आईपी मिलेगा। तो अब हम वेब सर्वर से डेटाबेस सर्वर को कनेक्ट कर पा रहे हैं बिकॉज दे आर इनटू द सेम नेटवर्क। अभी हम एक काम करते हैं, एक और सर्वर को डिप्लॉय करते हैं। ओके, आई विल क्रिएट अनदर वर्चुअल मशीन। अभी कौन सा क्रिएट करेंगे, देखो अभी वीनेट 2 के अंदर DB2 का जो सबनेट है ना, वहां पे ये वर्चुअल मशीन को क्रिएट करेंगे एंड वी विल बी एज्यूमिंग कि ये मेरा डेटाबेस 2 है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, आई विल क्लिक ऑन क्रिएट एज्योर वर्चुअल मशीन। यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप सिलिकॉन आरजी, वर्चुअल मशीन का नाम दे देते हैं हम DB2 नाम दे देते हैं, चलो सिंपल, लीव इट एज इट इज, एज इट इज। यहाँ पे ऑल पोर्ट्स अलाउ कर दो, क्लिक ऑन नेक्स्ट डेस्क, इसको अनटिक कर सकते हैं, क्लिक ऑन नेक्स्ट नेटवर्किंग। यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यू नीड टू सेलेक्ट योर वीनेट 2, वर्चुअल नेटवर्क 2 के अंदर DB2 सबनेट के अंदर ये डेटाबेस 2 हम बनाएंगे, इसको हम पब्लिक आईपी नहीं देंगे। ओके, तो अभी हम करेंगे नेक्स्ट, मॉनिटरिंग एडवांस टैग्स रिव्यू एंड क्रिएट। अभी ये बोलेगा क्रिएट कर लो, तो हम DB2 नाम का वर्चुअल मशीन अभी हम क्रिएट कर लो। आई डाउन, डाउनलोड हो गया। आई क्लिक ऑन पिट अप।
Done. I'll click on go to resources. Done. अब देखो ये मेरे डेटाबेस सर्वर अप एंड रनिंग है एंड इसको आईपी क्या मिला 10.2.1.4, तो इसको वही मिलना चाहिए 10.2.1.4 एंड इट इज इनटू अ डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है, तो क्या हम अभी देखो हम वेब सर्वर को कनेक्ट करके डेटाबेस को हिट कर पा रहे हैं। जब मेरा एक्स टाइप का डेटा आएगा तो हम डेटाबेस को कनेक्ट कर पा रहे, तो एप्लीकेशन जो डेवलपर होंगे वो अपने कोडिंग में ऐसा लिख देंगे कि ये डेटाबेस को जाकर के आप डेटा राइट करके आ जाओ, फाइन, दैट इज नो प्रॉब्लम। कल के दिनों मेरा वाई टाइप का डेटा आया, तो वाई टाइप का डेटा के लिए माय वेब सर्वर शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद दिस डेटाबेस आल्सो, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बैठ करके वेब सर्वर से पिंग करें किसको, तो ये डेटाबेस का जो आईपी है 10.2.1.4 10.2.1.4 को अगर हम पिंग करें तो देखो मेरे को पिंग नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि भाई ये जो डेटाबेस जो हम बनाए हैं इट इज ऑन टू अ डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क, राइट। दैट्स द रीजन व्हाई आई एम नॉट एबल टू गेट द पिंग। हम मेरा कनेक्टिविटी नहीं है। अगर कनेक्टिविटी सेटअप करना है तो पब्लिक आईपी देना पड़ेगा, पब्लिक आईपी हम डेटाबेस को दे नहीं सकते हैं, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है पियरिंग का, किसका? पियरिंग। सो मेरे को पियरिंग इनेबल करना, पियरिंग इनेबल करना है, ऐसा पियरिंग इनेबल करना है कि ये नेटवर्क शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद द रिसोर्सेज ऑफ दिस नेटवर्क, आल्सो दिस नेटवर्क शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद द रिसोर्सेज ऑफ दिस नेटवर्क, मतलब बोथ वेज होना चाहिए पियरिंग। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, चलो पियरिंग करते हैं। पियरिंग कैसे करते हैं, तो वर्चुअल नेटवर्क के अंदर आ जाओ, इसको स्टॉप कर देते हैं, कंट्रोल सी दबा के यू कैन स्टॉप इट। ठीक है, देखो सारा पैकेट लॉस हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, वर्चुअल नेटवर्क 1 के बीच में जाना है, मेरे को पियरिंग करवाना, राइट। वेरी सिंपल, यू नीड टू कम ओवर हियर, पियरिंग में आओ, you have to click on add peering। किससे किससे करवाना, तो हम बोल रहे वीनेट 1 को वीनेट 1 टू वीनेट 2 के साथ पेयरिंग करवाओ, वीनेट 2 के साथ पेयरिंग करवाओ। सो दिस वर्चुअल नेटवर्क, यहां से हम किसको करेंगे, कनेक्ट करेंगे वीनेट 1 से वीनेट 2 तक। नेक्स्ट, अब फिर मेरे को क्या करना है, वीनेट 2 से वीनेट 1 को भी पेयरिंग कराना, फाइन। तो देखो वीनेट 1 से वीनेट 2 को पेयरिंग कराएंगे, वीनेट 2 को वीनेट 1 से पेयरिंग कराएंगे, यू कैन गिव एनी ऑफ योर नेम्स। ठीक है, यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क का कौन से किसके साथ पेयरिंग कराएंगे, 2 के साथ पेयरिंग कराएंगे, दैट्स इट, यू नीड टू क्लिक ऑन ऐड। जैसे ही हम करेंगे तो देखो ये वीनेट 1 में मेरा वीनेट 1 टू वीनेट 2 पेयरिंग अब स्टार्ट हो गया, ठीक, कनेक्टेड। अब जैसे वीनेट 2 में जाएंगे हम, तो देखो यहाँ पे भी क्या एक ऑप्शन आ जाएगा, वीनेट 2 से वीनेट 1 का भी पेयरिंग कनेक्शन इनेबल है। जब हम पेयरिंग कनेक्शन इनेबल कर दिए तब हम मेरे को क्या करेंगे, अगर हम पिंग करके देखेंगे तो देखो आई एम एबल टू नाउ कनेक्टेड, राइट। तो हम लोग को पेयरिंग कनेक्शन इनेबल करना पड़ेगा, देन ओनली विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद द डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ अ डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है, तो ये पेयरिंग कनेक्शन इनेबल कर दिया हमने। सो मतलब अब ऐसा हो गया कि अगर मेरे पास वाई टाइप का डेटा आएगा तो हम वेब से अपने वाई टाइप का डेटा को डेटाबेस 2 में रख देंगे, राइट कर देंगे। अब मेरे को क्या करना है, एक और डेटाबेस क्रिएट करना है विच इज गोइंग टू बी योर DB3 डेटाबेस विच इज गोइंग टू बी इनसाइड योर वर्चुअल नेटवर्क 3। ठीक है, तो आओ अब एक बार और करते हैं क्रिएट। आई विल गो टू वर्चुअल मशीन्स, आई विल क्लिक ऑन क्रिएट वर्चुअल मशीन। ओके, रिसोर्स ग्रुप होगा सिलिकॉन आरजी, वर्चुअल मशीन विल बी योर DB3 नाम दे देते हैं। ठीक है, and leave it as it is, as it is, as it is, as it is। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको वीनेट 3 में रखो, उसका ऑटोमेटिकली सबने एक ही बनाए थे तो एक ले लिया, इसको आईपी नहीं देना है, पब्लिक आईपी नहीं देना, मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एडवांस टैक्स इवेंट ग्रुप। I'll click on create, I'll download the key pair। Okay, I'll click on return to virtual machine।
डन। देन अभी हम क्या करेंगे, गो टू रिसोर्सेस। अब ये DB3 को आईपी क्या मिला है, DB3 को आईपी मिला है 10.3.1.4। अगर हम यहाँ पे आकर के पिंग करते हैं 10.3.1.4 को अगर हम पिंग करते हैं तो देखो हमको पिंग नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि मेरा वर्चुअल नेटवर्क 1 अलग है, वर्चुअल नेटवर्क 3 अलग है, और हम पेयरिंग इनेबल किए वर्चुअल नेटवर्क 1 से वर्चुअल नेटवर्क 2 में। तो अब मेरे को 1 से 3 में भी इनेबल करना है, तो आ जाओ चलो इनेबल करते हैं। तो आई गो टू वर्चुअल नेटवर्क 1 में जाते हैं एंड मेरे को पेयरिंग इनेबल करना है। आई विल हैव टू कम टू पेयरिंग। अब हम यहाँ पे बोलते हैं VNet 1 से VNet 3 तक पेयरिंग इनेबल करते हैं, ठीक। अब फिर हम क्या बोल रहे हैं, इसी को पेयरिंग लिंक नेम यहाँ 3 से 1 का सेटअप कर, फाइन। कम ओवर हियर, यहाँ पे VNet 3 के साथ स्टैब्लिश करना, दैट्स इट, यू नीड टू क्लिक ऑन ऐड। डन। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, VNet 1 से VNet 3 तक कनेक्टेड हो गया। अब VNet 3 में जब जाएंगे, यहाँ पे देखो क्या बोलेगा, VNet 3 से VNet 1 भी कनेक्टेड हो, फाइन। सो इट मींस आई एम ऑल ओके नाउ। अगर अभी हम पिंग करना चाहें तो देखो आई एम एबल टू पिंग। सो मतलब अब हम सेटअप पूरा करके देख लिया एंड इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। बट अब मेरे को पता चल गया 1 3 से कर पाएगा, 1 2 से कर पाएगा, डन। 2 भी 1 से कर पाएगा, 2 3 भी 1 से कर पाएगा। बट क्या 2 3 से कर पाएगा, क्या 2 3 से कर पाएगा पिंग? हाउ आर वी गोइंग टू टेस्ट दिस? तो मेरे को ये दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ योर टास्क। तो समझो अभी करना क्या है मेरे को। तो मेरे को एक काम करना, वेब सर्वर को हम कनेक्ट किए, ये वेब सर्वर कनेक्ट किए। अब हम ये वेब सर्वर से हम DB2 को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो हम यहां से बैठ करके, वेब सर्वर से बैठ करके हम डेटाबेस 2 को SSH करेंगे। कैसे SSH करेंगे, उसका की फाइल जो होगा उसको हम यहाँ पे की फाइल बनाएंगे, उसके अंदर कंटेंट डालेंगे, पेस्ट करेंगे, chmod 400 का परमिशन देंगे। वंस दैट इज डन, फिर हम SSH के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे किसको, आई विल बी कनेक्टिंग टू दिस डेटाबेस। कर लेंगे कनेक्ट, इट इज पॉसिबल। तो हम अपने वेब सबनेट के अंदर, वेब सर्वर के अंदर से बैठ करके विच इज ऑन टू योर VNet 1, हम डेटाबेस को कनेक्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पेयरिंग इनेबल है तो कनेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग SSH करके देख लेंगे और SSH करके हम डेटाबेस 2 के अंदर चले जाएंगे। और हम वेब सबनेट, वेब सर्वर के थ्रू ही जा सकते हैं क्योंकि उसको प्राइवेट आईपी मिला हुआ, डेटाबेस 2 को प्राइवेट आईपी मिला हुआ, तो हम अपने सिस्टम से बैठ के नहीं एक्सेस कर सकते उसको, राइट। तो हम क्या करेंगे, वेब सर्वर के अंदर जाएंगे, उसके अंदर से जा करके हम अपने डेटाबेस 2 को कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, वहां पे जो की फाइल जिससे हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, डेटाबेस 2 को, उसका की फाइल बनाएंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दैट की फाइल आई विल बी एबल टू कनेक्ट। जैसे ही कनेक्ट कर पाएंगे तब ये डेटाबेस 2 जब कनेक्ट कर लेंगे तो हम डेटाबेस 2 के अंदर अब हैं। तो डेटाबेस 2 के अंदर जब हम हैं तब हम वहां से पिंग करेंगे। पिंग किसको, डेटाबेस 3 को। तो क्या हमको वो पिंग मिलेगा? अगर मिला तो मेरे को बताना, अगर नहीं मिला तो इसको कैसे सेटअप करना पड़ेगा। ओके, अगर नहीं मिला पिंग तो हम ऐसा क्या सेटअप करेंगे कि डेटाबेस 2 डेटाबेस 3 के साथ पिंग कर पाए। ओके, और जो वो कर लिए मतलब पेयरिंग का कॉन्सेप्ट उसको पूरा पूरी क्लियर होता है। मेकिंग सेंस गाइस व्हाट क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड? अदर्स, बाकी और लोगों को क्लियर है हम क्या पूछे हैं क्वेश्चन? एक बार और रिपीट कर रहे हैं, मेरे पास एक वर्चुअल नेटवर्क 1 है, वर्चुअल नेटवर्क 2 है, वर्चुअल नेटवर्क 3 है। अगर मेरे को क्या करना है, वर्चुअल नेटवर्क 1 और वर्चुअल नेटवर्क 2 के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना, तो पेयरिंग कनेक्शन कर दी। वर्चुअल नेटवर्क 1 और वर्चुअल नेटवर्क 3 के बीच में पेयरिंग कनेक्शन कर दी, तो मेरे अब रिसोर्सेज कम्युनिकेट कर पा रहे हैं फ्रॉम वर्चुअल नेटवर्क 1। बट मेरे को ऐसा चेक करना है कि क्या मेरे वर्चुअल नेटवर्क 2 वर्चुअल नेटवर्क 3 के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, आर दे एबल टू कम्युनिकेट, पिंग कर पा रहे हैं क्या। तो ये टेस्ट करना पड़ेगा, राइट। पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वेब सर्वर के अंदर जा करके मेरे को ये डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ेगा और वाया प्राइवेट आईपी आई कैन कनेक्ट नाउ।
क्यों? क्योंकि पेयरिंग इनेबल हो गया। कैसे कनेक्ट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ योर की फाइल। तो की पेयर फाइल तो मेरे पास लोकल में है, तो उसको हम कैसे इसके अंदर ले जाएंगे? तो हम फाइल बनाने सिखाएं, राइट? पहला लैब में वही किया कि हम अपने वेब सर्वर के अंदर बैठ करके अपने डेटाबेस 1 को एक्सेस कर रहे थे। तो वहां पर भी मेरे को की फाइल चाहिए था, तो की फाइल हम क्रिएट किए, chmod 400 का परमिशन दिए, एंड देन आई वाज एबल टू कनेक्ट, राइट? सिमिलरली इसके लिए जो की फाइल जरूरत है उसको हम अपने वेब सर्वर के अंदर लाएंगे, क्रिएट करेंगे, उसको chmod का परमिशन 400 का परमिशन देंगे, एंड देन आई विल बी एबल टू कनेक्ट टू दिस पर्टिकुलर सर्वर। जैसे सर्वर को कनेक्ट कर लिए, अब हम डेटाबेस 2 के अंदर है। अब डेटाबेस 2 के अंदर से हमको पिंग करके देखना है डेटाबेस 3 को, वेदर आई एम एबल टू पिंग। अगर पिंग कर पा रहे हैं तो मेरे को बताओ कल, अगर नहीं पिंग कर पाए तो फिर मेरे को क्या सेटअप करना पड़ेगा, सो दैट आई विल बी एबल टू पिंग फ्रॉम डेटाबेस 2 टू डेटाबेस 3। मेकिंग सेंस? Yes, sir. ठीक है, चलो, तो वी विल बी स्टॉपिंग हियर ओनली, ठीक है? सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग। नॉट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर देते हैं, अदरवाइज दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आएंगे, क्लिक ऑन आरजी। बेस्ट थिंग इज यू हैव टू क्लिक ऑन डिलीट रिसोर्स ग्रुप, एक ही बार में सब डिलीट हो जाएगी। AWS के केस में ऐसा नहीं होता। एंड कमिंग 2 days, जो अभी आने वाला 2 दिन है, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस। ओके, इसमें हम कुछ स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे एंड टू एंड, ताकि इससे क्या होगा ना, यू विल गेट एन आइडिया, और अगर वो प्रोजेक्ट्स वगैरह को लिखोगे रिज्यूमे में, दैट इज गोइंग टू ऐड अ वैल्यू टू दैट। ठीक है, तो कल के क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, परसों क्लास भी बहुत मतलब अभी से जो भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अभी तक बेसिक फंडामेंटल्स ही हम लोग कवर अप कर रहे थे, बट कल से एडवांस चीजें कवर अप होना शुरू हो जाएंगी। ओके, चलो, so this will take some time to delete the resources. Okay, so after this is done, we are all set. Okay, so we'll stop sharing here, we'll stop sharing, and we'll stop recording.